Today I'll be presenting my project Investment Gharghar. It is inspired from Boston Stock Exchange. My name is Sayed Tariq and my roll number is 77. Firstly, I should tell you what libraries we have used to build our app. We have used SQLite as a database. We have four tables initialized in SQLite database. We have portfolio table, we have investors table, we have transaction table, and lastly we have notifications table. For GUI, we have used Angular library. We get library from GitHub and bundled with our app through CMake build. And we have even used env files for data security purposes. And then the data we are getting is from API. It is live data coming from of Boston Stock Exchange, coming directly from API. I get the API from GitHub as well, which provides me live data. We are subscribed to WebSocket connections as well to receive live take updates of price changes, etc. So if you see the data on Boston Stock Exchange and then our app, data will be similar as we are retrieving it live. Let's see what our main UI looks like. At top, we have a register button. Clicking on it will open a register dialog. We have lots of fields here to create an account, and all fields are required here. Means if any of the fields is not filled here, it will error you out and not allow you to register. All the fields are validated. Like CNF must be 13 characters long. Email must follow its format. Date of birth must be follow its format and must be 18 years old. And then we have a brokerage drop down to select, and AHL is selected currently, means RFIB limited. We are creating a account with. And then we have two types of account to create, CDC one and Saudat one. CDC requires more documents to be uploaded. Clicking on any upload button here will open the native file explorer and prompt you to upload required file types like PNG, JPG, PFP or PDF. Once uploaded, and then we have two checkboxes, filer and exempt zakat. Exempt zakat will exempt zakat from your investment 2.5%. And finally, if you click on filer, you will require to upload an extra document, tax returns from SBR. And if all the fields values are valid and correctly filled, then you can successfully click register button to register yourself as an investor. Okay, now it's time to log in. Clicking on the login button here will open the login dialog. It has four fields and all the fields should match some kind of DB record to allow you to register. And once you start putting values, if any of the field is wrong here, it will not tell you which field is the cause of unsuccessful login. The app is highly secure. Here, the password and IBAN you stored previously are stored in a hash format and not in a plain original format. So even if our database is compromised, the hacker will never know the original values. Also, if all the inputs you have done in login dialog are correct and match some kind of DB record, it will allow you to successfully log in. Once log in, you can see the register and login button are gone. Now you have four buttons: new, get premium, notification, portfolio, and dashboard. Firstly, I will be clicking on file button. It will open a profile dialog where we can see at left all the details of the current logged in user are listed. Also, he can see his documents, whatever he has uploaded at the time of registering, by clicking on any of the view buttons here. Also, at the right, you can see we have an update form where user can update its individual information, like if he wants to change his name, date of birth, increase his balance, decrease his balance, or change his filer status, or again filer status if he is changing it. So he needs to upload the text file return document. Also, he can change his exam status document, exam status. Also, he can update his address. So there's nothing required in the update form. He can fill any of the field, one or two or anything, and just click update. It will update and reflect immediately at the left panel the updated information. And currently we are logged in as an normal user. What if we logged in as an admin user? It will show us admin UI, as admin is already registered. So all you have to do is to log in as an admin. Okay, so now just logging in as an admin will not open the admin UI. For that, you need to do one more step because of several security layers. So all you have to do is to open environment file and put admin UI to true. Just putting that environment variable to true, and then you have to close the app and reopen the app again. Again, closing the app and reopening will keep the current logged in user as logged in, as the login status is stored in the file system, but in a binary file, not in a plain text. So your information will never be leaked here. Also, now the admin UI is visible. Just okay, what if a normal user does that? What if normal user sees .env file and put admin UI to true? It will not going to open admin UI for normal user because it will going to have multiple checks and you're going to check that current login user is admin or not. If it is admin, then it will going to other to that environment variable change. After that, the admin UI is open. We can see that we have security purposes. We have a separate logout and exit button here for emergency security purposes, and then all the information listed of investors, transactions, and portfolios ever created on the app, like bull database is listed here, and we can see investors documents as well through the. Now I'd like to highlight the portability of our app. If I take .exe file out of the main project folder
and paste it in any drive, so it will still going to work and function properly, creating its required directories like data folder and database at all the fields, that all the things that is required to function properly without any crashes. Even to the point I can send this .exe file alone to any other Windows device, and there you can just double click on the .exe file and it will going to work on another Windows device as well, just creating its own directories and database stuff, and it will going to start from scratch. So the feature is right for this app, and the portability is a great feature to have in if we are looking it for any feature directions. The app is very much useful for the Pakistan Stock Exchange investors. If we talk about OOPS usage in our project, all the data members in our classes are private, and we are accessing them through data. That follows the principle of encapsulation. We have an asset class called base class, and through the base class, other dialogues inherited it. Like we have a lot of dialogues, register dialog, login dialog, so dashboard dialog, premium dialog, all the dialogues inherited the base dialog, and how inherited feature as well. Like for example, base dialog has validations defined. So validations are used then by style classes, the register dialog, login dialog, and profile dialog for subject form. That's how we actually make the inheritance useful. Also, we have used the friend class as well, and the portfolio class, portfolio investors and transaction class to make the database manager class friend to all these classes, so it can access all the private data members of these classes because it is a database manager class. That's how we use OOPS in our app. Further usage of OOPS is also present in our final report. You can see there as well. And now over to Bisma from here. Shahryar has completed part. So now अब मैं आपको specific stock की details show करती हूँ. Like you can see we have two charts. First is current week chart which is updating through live API, and उसके नीचे historical chart है जो कि stock की complete details को show करता है पूरे year की. And दोनों chart जो है वो सारी details को show कर रहे हैं, like open, low, high and current prices भी show हो रहे हैं. Similarly market stage में भी सारी details show हो रही हैं, open, low, high and volume भी listed है. And fundamentals में जो है वो रेशोज मौजूद हैं जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि जो स्टॉक है वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है. तो इसमें शरिया रिलेटेड डिटेल्स भी मौजूद हैं, लाइक जो स्टॉक है वो शरिया कॉम्प्लाइंट है या नहीं है. लास्टली कंपनी का अबाउट इन्फो भी लिस्टेड है, एंड ऑल डेटा कमिंग थ्रू लाइव एपीआई. एंड लास्ट में अगर हमारे पास जो कंपनी है वो नॉन कॉम्प्लाइंट होगी तो फंडामेंटल्स में वार्निंग शो हो जाएगी एंड इन्वेस्टर विल अवॉइड दैट स्टॉक. सो दैट्स माई पार्ट, एंड आफ्टर दैट हुज़ैफा विल गाइड यू के शेयर्स बाय एंड सेल कैसे करना है. As Bisma said, I will show you buy and sell flow. बट बिफोर दैट हमें एक सिक्योर पिन क्रिएट करनी होगी जो ट्रांजैक्शंस के लिए यूजर प्रोफाइल डायलॉग से वन टाइम क्रिएट हो जाएगी. लाइक तो आपको मतलब वो रिमेंबर करनी पड़ेगी एवरी टाइम यू आर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस. यू हैव टू कीप दैट इन माइंड बिकॉज वो हमारे पास SQLite के डेटाबेस में स्टोर होगी. और अगर पहली बार बाय कर रहे हैं तो अगेन सिंबल डायलॉग में बाय बटन को क्लिक करने पर ऑप्शन आएगा, आपके पास पॉपअप आ जाएगी किस्म से कि यू हैव टू क्रिएट अ पिन फर्स्ट. तो मतलब यू हैव नॉट क्रिएटेड पिन येट, तो इस तरीके से वो आपको पॉपअप दे देगा. एंड देन ट्राइंग टू बाय शेयर्स व्हिच मींस शोज के आप हाईली इंटीग्रेटेड हैं. वंस पिन क्रिएट आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. तो मतलब आपके लिए पिन इज काइंड ऑफ अ हैश, मतलब इज काइंड ऑफ द थिंग के जो आपके पूरे फ्लो को सिक्योर बनाते हैं. ऑब्वियसली यू डोंट वांट एनीबॉडी टू सी योर पोर्टफोलियो एंड सेम गोस फॉर यू. तो क्या आप किसी और का पोर्टफोलियो देखें, तो दिस इज समथिंग व्हिच एनक्रिप्शन जिस पे हमें मेजरली वर्क करने की जरूरत थी. तो दैट सिक्योर थिंग इज ओवर देयर. तो और आप सिक्योर पिन टाइप करके वंस बॉट इट विल बी इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड इन इन्वेस्टर्स डैशबोर्ड इन विच अंडर व्यू पोर्टफोलियो. कोई भी स्टॉक आप किसी भी अमाउंट पे बाय करते हैं तो सडनली वो फिर आपके पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएगा. देन यू कैन हैव अ लुक कि आपने किस प्राइस पे कितने उस पे वो किया. उसमें आपकी जितनी भी स्टॉक लिस्ट होती है, ऑल ऑफ द स्टॉक्स व्हिच यू बॉट, आई मीन दे विल बी ओवर देयर एट व्हाट प्राइस यू बॉट एंड फर्दरमोर ऑप्शन है एंड कितनी क्वांटिटी में आपने बाय किया. ये बहुत नेसेसरी चीज़ है कि हम एक ही शेयर को मल्टीपल टाइम्स बाय कर सकते हैं एट डिफरेंट प्राइसेस. सो दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू लुक इनटू कि भाई अगर हम एक स्टॉक फॉर सपोज वी आर बाइंग गोल्ड या फॉर सपोज वी आर इन्वेस्टिंग इन पर्टिकुलर बिग कंपनी लाइक बैंकिंग कंपनी स्टॉक, तो अगर हमने उसको एक बार एक्स अमाउंट पे बाय किया देन वी आर अगेन बाइंग आफ्टर सम टाइम रिगार्डलेस ऑफ इट गेटिंग स्काई रॉकेटेड और डाउन. हम जिस प्राइस पे उसको अगेन बाय करेंगे देन प्राइस डिफरेंट होगी तब. तो ये हमारे पास नेसेसरी होना चाहिए कि हम किस स्टॉक को किस प्राइस पे कितनी बार बाय कर रहे हैं. तो हर बाय की मतलब अपनी अपनी एक उसकी सेपरेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी. उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि भाई कितने स्टॉक्स हमने टोटल लिस्ट कर दिया. हमारा पूरा एक पोर्टफोलियो डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा कि हमने किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी में सेल किया. देन अगेन वी कैन एक और हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि अगर हम सारे स्टॉक मतलब सेल कर दें, मतलब अगर हम बिट बाय बिट सेल करें, मतलब अब अगेन द सेम एनालॉजी अप्लाइज हियर कि अगर हम बाय एक साथ कर नहीं रहे, मतलब टुकड़ों में कर रहे हैं और डिफरेंट प्राइस सेक्टर्स पे कर रहे हैं, देन अगेन इफ यू आर सेलिंग इट वो भी हमारे पास मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर आ जाएगा कि व्हेन वी आर सेलिंग हाउ मच एट व्हाट पॉइंट. तो अगर वही गोल्ड या कोई भी XYZ स्टॉक है वो मैं एक्स अमाउंट पे सेल कर रहा हूँ सर्टेन क्वांटिटी, देन अगेन आफ्टर सम टाइम मैंने फिर सेल कर दिया फॉर सपोज वो बढ़ गया प्राइस उसका. तो व्हेन आई सोल्ड दैट पर्टिकुलर स्टॉक एट हायर प्राइस तो तब उसका सेगमेंट डिफरेंट होता है. हमारे पास इसी एक चीज़ की हमारे पास पूरा एक चार्ट होना चाहिए. वी हैव टू नो कि हम क्या चीज़ कितने पे बाय कर रहे हैं, कितने पे सेल कर रहे हैं और कितना बाय कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं. ये चीज़ हमारे पास क्लियर होनी चाहिए. तो अगर हम एक स्टॉक के लिए मतलब सारा स्टॉक सेल कर देंगे तो अगेन हमारा पोर्टफोलियो बिल्कुल जो हमारा इन्वेस्टर डैशबोर्ड है वो क्लियर हो जाएगा कि हमने अब सब कुछ सेल कर दिया है. तो प्रॉफिट लॉस ऑन बाय सेल इन दो कॉलम का यूज करके करंट बनना है कि करंट प्लेस से कंपेयर करके चार्ट शो करना है. हमारे पास चार्टिंग का ऑप्शन है, पाई ग्राफिंग है हमारे पास कि हम लोग किस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, किस में हमारे शेयर ज़्यादा हैं, किस में हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है, हम इस चीज़ को भी देख सकते हैं. और हमारे पास एक और सेक्टर भी दिया जाता है यहाँ पे प्रॉफिट सेल का, प्रॉफिट लॉस का, जिसमें अगर डे टू डे अगेन वी हैव इंटीग्रेटेड द GUI एज वेल. तो इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि फॉर सपोज एक
हमारा जो है स्टॉक है एक्स स्टॉक, लाइक वी बॉट एट एक्स प्राइस, देन अगेन राइट आफ्टर द नेक्स्ट डे वो पॉजिटिव हो जाता है, लाइक निगोश मतलब स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल डिफरेंस है वी कैन से। तो वो हमारे पास ग्रीन उसके अंदर आ जाएगा, ग्रीन सेगमेंट के अंदर आ जाएगा। देन इफ इट्स गोइंग इन लॉस देन हमारे पास रेड सेगमेंट में आ जाएगा। तो वी कैन डे टू डे चेक एंड एनालाइज दैट रादर स्टॉक व्हिच वी बॉट इज गोइंग इन प्रॉफिट और नॉट। उसके बाद हमारे पास एक और जो आई वुड से दिस इज द मेन थिंग ऑफ आवर प्रोग्राम व्हिच इज द प्रीमियम एजेंट। हमारे पास एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर अवेलेबल होगा, बट दिस इज नॉट इजी टू एक्सेस, दिस इज अ वेरी की फीचर। सो हर किसी के पास अगर एक्सेसिबल होगा तो दिस विल क्रिएट एन हर्डल। तो अगेन बीइंग अ प्रोग्राम मेकर मुझे भी तो कहीं ना कहीं फायदा हो। सो दैट इज वेयर वी हैव टू बैंक कि भाई एक प्रीमियम सेगमेंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन के तौर पे एक एजेंट अवेलेबल होगा। लाइक एक्स स्टॉक पे जैसे अगेन मेरा पोर्टफोलियो है तो मेरी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या मेरा ज़्यादा माइंड, मेरी ज़्यादा प्रॉफिट की होल्डिंग्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो मेरी नज़र उस पर ज़्यादा है। तो मैं अपने एजेंट को सेट कर सकता हूँ कि उस एक्स अमाउंट पे अगर एक स्टॉक आ जाए जो कि मेरे लिए वाइबल है बाय करने के लिए, सो इतने अमाउंट पे कभी भी आ जाए, अब रिगार्डलेस आई मीन आई एम स्लीपिंग, आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग आउट विद माय फ्रेंड्स, डजंट मैटर, दैट एआई एजेंट इज वर्किंग इन द बैकग्राउंड, सो इट विल हेल्प हिम कि मतलब वो बैकएंड पे अपने पास से इट कैन हैव दैट मच ऑप्टिमाइजेशन वेयर ही कैन बाय एक्स स्टॉक इफ द क्राइटेरिया मैचेस। लाइक अगर मैंने उसको एक्स अमाउंट सेट कर दी कि इतनी अमाउंट पे इतना स्टॉक बाय कर ले, सो इफ विल बी हैविंग फंड्स इन आवर पोर्टफोलियो, तो वो उतने स्टॉक्स बाय कर लेगा उसी प्राइस सेगमेंट पे और जितने हमने क्वांटिटी बताई उस हिसाब से बाय कर देगा। एंड फॉर सपोज इफ वी डोंट हैव दैट मच फंड्स इन आवर अकाउंट, तो वो सिंपली उस चीज को नेग्लेक्ट कर देगा। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज गुड बिकॉज़ अगेन स्टॉक मार्केट इज अ वेरी यू कैन से टाइम कैलकुलेटेड आई वुड से सेगमेंट और नीश, क्योंकि यहाँ पे आप हर जगह पे आपको सेकंड में मार्केट अप एंड डाउन जाती है। सो यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड्स, यू हैव टू सी कि आपका कहाँ पे क्या इन अ टाइमली मैनर बन सकता है प्रॉफिट फ्रॉम बीइंग वेरी हैविंग लोएस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टिल हाईएस्ट। तो आप उस चीज को जब मद्देनजर रखते हुए इस एजेंट को यूज करते हो ना, तो देन अगेन यू आर डूइंग, ज़ाहिर आप पूरा दिन मार्केट के सामने नहीं बैठ सकते। तो अगर आपके बैकग्राउंड में मार्केट चल रही है तो फिर भी वो एजेंट अपना काम कर रहा है, आप अपना घूम रहे हो, पी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन वो एजेंट बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है, आपका सारा काम करके दे रहा है। तो दिस इज समथिंग आई वुड से द मेन थिंग और मेन आई कैन से marketing move which we can make by applying by integrating this agent, so that a person who is buying the agent will be in profit, simultaneously the person from whom he is buying he'll be in profit as well. तो ये दोनों की कश्ती चलती रहेगी ऐसे काइंड ऑफ, ये है इसका सेटअप। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई आगे। उसके बाद आगे चल के अगर अगेन इनसफिशिएंट फंड्स होंगे तो वो उस चीज़ को रोक देगा। इसके आगे आपको अलीना कंटिन्यू करेंगी। Okay, so now it's my turn and I'll briefly explain the UI UX refinements or dashboard functionality of our PSX terminal system. Okay, so पहले सबसे पहले main UI में हमारे पास live market watch table है, जहाँ user different categories like top gainers, top losers, mutual funds और ETF buttons के through select कर सकता है और table dynamically उसी particular category का live data, live stock data शो करती है। ठीक है, उसके साथ हमारे पास एक माइकी ड्रॉप डाउन भी है। यूजर जिस पर्टिकुलर कैटेगरी को सिलेक्ट करता है, माइकी ऑटोमेटिकली उसी कैटेगरी के लाइव स्टॉक को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, फर्दरमोर वी हैव अ मार्केट हेल्प पार्ट टू व्हिच विजुअली शोज कि आज मार्केट में कितनी कंपनीज नेगेटिव, पॉजिटिव या अनचेंज्ड हैं बेसिकली। उसके बिलो हमारे पास सेक्टर रिलेटेड डाटा का एक टेबल अवेलेबल है, जिसमें एक ऐसा टेबल है ये जो जिससे होता है हर सेक्टर का अपना एक हेल्प पार्ट होता है बेसिकली, तो वो ओवरऑल सेक्टर का परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करता है। सो और हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सेक्टर वेटेज भी है, का फीचर भी है, जो ये शो करता है कि किसी सेक्टर का पॉजिटिव, नेगेटिव या अनचेंज रहने से ओवरऑल मार्केट पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और अलॉन्ग विद परसेंटेज चेंज बेसिकली ये सारा डाटा लाइव और मार्केट ओपन होने पर फ्रीक्वेंटली अपडेट होता रहता है। ठीक है, और फाइनली वी हैव इम्प्लीमेंटेड पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन डायलॉग टू। तो बेसिकली इसका मतलब है कि यूजर को डिफरेंट नोटिफिकेशन रिसीव होती है, लाइक लॉग इन एक्टिविटी, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन परचेज और कैंसिलेशन, फीडबैक प्रॉम्प्ट्स और एवरी बाय और सेल की ट्रांजेक्शन। हमारे पास एक नोटिफिकेशन हमारे पास जितनी भी नोटिफिकेशन सारी ऑल पर्सनलाइज्ड होती हैं, यूजर के नेम से स्टार्ट होती हैं और यूजर नोटिफिकेशन को इंडिविजुअली मार्क एज रीड भी कर सकता है और मार्क ऑल एज रीड भी कर सकता है।